जी, तो मैंने ये बताया था कि मंडे और वेडनेसडे 9 to 10 ही होंगे लेक्चर जो पहले टाइम टेबल में है, उसी के मुताबिक। सिर्फ थर्सडे वाला जो है वो 11 o'clock, वो जो फ्राइडे वाला था वो थर्सडे को ही होगा 11 o'clock, बाकी वही 9 to 10 होंगे। लेकिन ये रूटीन भी नेक्स्ट वीक तक चलेगी। उसके बाद डॉक्टर आसिफ साहब अगेन हाफ पोर्शन वो पढ़ाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक हाफ पोर्शन हो जाएगा मेरा। तो उसके बाद फिर अगेन यू हैव टू कंसल्ट विद डॉक्टर आसिफ एंड वट एवर ही से। ठीक है, तो ये वीक और इससे अगला हाफ वीक मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद डॉक्टर आसिफ कंटिन्यू करेंगे आपके साथ मिड तक, राइट? जी सर, थैंक यू। Right, just to remind you all that there was an assignment related to this problem 6.7, and the deadline is today till 11:59 p.m. Right, so all of you need to submit the assignment on the Microsoft Team. Please don't email me, everyone. You should upload it on Microsoft Team. If there is some problem, then you can email me and tell me there is some problem in Microsoft Team. That's why I'm emailing you, right? But try to upload it on Microsoft Team first. सर ये 6th एडिशन है ना? जी, 6th एडिशन है ना ये वाला? yes, I think. Right, so in our last lecture we studied till this slides, in which we developed the expressions for thermodynamic variables in terms of measurable parameters for ideal gases, and later on we expanded expressions for real gases, and we said that for real gas we need to have the residual properties, and once we have the residual properties we can add those residual properties in the properties of the ideal gas, and then we can get the properties of the real gas. So for the real gas we just have this expression, which is any property of the real gas will be equal to the property of the ideal gas plus the residual property, right? What is residual property? Residual property is basically the difference of ideal and non-ideal gases, and this property basically incorporates this non-ideal behavior of that real gas. तो इसके एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर स्लाइड्स में हमने ड्राइव किए थे टिल दिस स्लाइड, एंड वी saw that how we can replace the expression for volume for ideal gas, which is simply RT over P, and for real gas we include this compressibility factor that basically incorporates the expansion and compression in the gases, and this results non-ideality in the system. So this compressibility factor multiplied by RT over P will give you the volume of the real gas. So once you add these two, we get what we can get if we add these two. This is the non-ideality behavior in the volume, and it is basically the residual volume. So once we add this volume of the ideal gas with the residual volume, we get the actual volume of the real gas, right? Next is enthalpy and entropy from residual properties. As we are proceeding, these mathematical expressions will become more complex. So I will not go in depth detail for these mathematical expressions. We try to study these expressions. We will just have the overview for these complex mathematical expressions and then their applications. So in today's lecture, we will be studying the enthalpy and entropy from residual properties. We have seen these expressions that the property, thermodynamic property for any real gas
will be equal to the thermodynamic property of the ideal gas plus the residual property, right? And for example, if we are writing these expressions for any advanced temperature and pressure conditions, and we have the reference temperature and pressure conditions, so we can write this enthalpy for the ideal gas as the enthalpy at the reference conditions, which is normally 1 bar and 27 degrees Celsius, or 1 bar and 300 Kelvin temperature. This is basically reference temperature for the gases. So this is the enthalpy of the ideal gas at the reference conditions plus the enthalpy of the ideal gas at elevated temperature. Because we know that when we keep increasing the temperature and keep reducing the pressure, the system will remain as ideal system, or the gas will remain or will act as ideal gas. At higher temperature and lower pressure, the gas will behave like ideal gas. So if we have any system at higher temperature, so how we can write the expression for the ideal gas? This would be the enthalpy of the ideal gas at the reference condition, which is 1 bar and 27 degrees Celsius or 300 Kelvin temperature, plus the change in the temperature, which is taking that gas to a higher temperature and the gas is still behaving as ideal. So for that, we will be using that expression for changing temperature, which is simply Cp dt. Similarly, for entropy, you know that for entropy, the expression is Cp dt over T minus R ln P over P naught. We have developed this expression previously at any temperature. So for entropy, how we will be writing for higher temperature of ideal gas, that would be the entropy of ideal gas at higher temperature will be equal to the entropy at the standard or reference state plus the entropy at higher temperature. That will be because of this term. At higher temperature and lower pressure, the higher temperature will be from this term and the lower pressure will be from this term. So that would be the entropy of any ideal gas at elevated condition of temperature and lower pressures. Substitution into the preceding equation gives, अभी चूंकि आइडियल गैस के हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स, अगर हम दोबारा रियल गैस की प्रॉपर्टी निकालना चाह रहे हों तो रियल गैस की प्रॉपर्टी निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टी होती है प्लस द प्रॉपर्टी द रेजिडुअल प्रॉपर्टी, when we add the property of the ideal gas plus the residual property, we get the property of the real gas. So what we did, we just replaced this expression into this expression. Instead of this enthalpy of the ideal gas at the reference condition, we have replaced this expression for elevated temperature. So the final expression will be 6.50. Similarly, for entropy, we can replace this expression here in this expression instead of Sij. So Sij की जगह जब हमने ये expression replace किया तो final expression जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, which is 6.51. ठीक है, अब आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि elevated conditions के ऊपर है, elevated temperatures और pressure भी अगर reference ना हो, so you can use these expressions. ठीक है, कोई भी, अब हमें पता है कि गैसेस जरूरी नहीं कि हमेशा रेफरेंस कंडीशंस पे ही हों, कि हमेशा वो 1 बार और 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन पे ही होंगी, वो किसी और कंडीशंस पे भी हो सकती हैं. तो अगर किसी और कंडीशंस पे हैं तो हमें पहले आइडियल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए उन कंडीशंस के ऊपर. तो वो आइडियल प्रॉपर्टी जो एलिवेटेड कंडीशंस है उनके ऊपर हम इन एक्सप्रेशंस के थ्रू कैलकुलेट करेंगे और फिर रेजिडुअल प्रॉपर्टीज उसमें ऐड करके और फिर हम एक्चुअल गैस की प्रॉपर्टी निकाल लेंगे. अब इससे रिलेटेड ही ये एक एग्जांपल है. Calculate the enthalpy and entropy of saturated isobutane vapor at 360 Kelvin from the following information. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने enthalpy और entropy निकालनी है saturated isobutane vapors की, वो elevated condition of temperature के ऊपर है, which is 360 Kelvin. और हमें जो information दी हुई है table 6.1 gives compressibility factor data value of Z for isobutane vapors.
ठीक है, नीचे आप टेबल देख सकते हैं 6.1, इसमें डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर starting from 0.1, 0.5, 2, 4, 6, 8, 10, right? And against different temperatures, 340, 350, 360, 370, and 380 Kelvin. You have the values of the compressibility factor. The second information given as the vapor pressure of isobutane at 360 Kelvin is 15.41 bar. उसका vapor pressure given है. Third information जो given है वो है set H naught ideal gas, which is the enthalpy of the ideal gas at the reference condition, that would be 18.115. Sorry, 18,115 joule per mole, and the entropy at the reference condition is 295.976 joule per mole into Kelvin. For the ideal gas reference state, which is 300 Kelvin and 1 bar, as I explained before, the reference state for the gases are 300 Kelvin and 1 bar. तो इस कंडीशंस के ऊपर आइदर इंफॉर्मेशन आपको या तो गिवन होगी या तो फिर कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा और उस एक्सप्रेशन के बारे में बताया हुआ होगा आपको कि ये रेफरेंस कंडीशन के लिए सिर्फ यूज हो सकता है और उसमें टेम्परेचर प्रेशर जस्ट आप प्लेस करेंगे एंड यू कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज. तो यहाँ पे ये नीचे आप देख भी सकते हैं, दीज वैल्यूज आर इन अकॉर्ड with the bases adopted by R.G. Goodwin and W.M. Haynes, Nat Burstand, US, Tech Note 1051 1982. ये एक बुक है, इस बुक में भी कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है और उन एक्सप्रेशन से भी अगर आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली आती हैं. तो वही मैंने आपको बताया कि रेफरेंस कंडीशंस के ऊपर या तो आपको वैल्यूज स्ट्रेट अवे दे दी जाएंगी लाइक हियर, और यू विल बी गिवन सम सिंपल एक्सप्रेशंस फॉर the reference conditions and you will just place the temperature, pressure, other constant values, and you can easily calculate this enthalpy and entropy at the reference conditions. The next information which is given as the ideal gas heat capacity of isobutane vapor at temperature of interest is through this expression. You know the Cp is a function of temperature and Cp can be calculated for any temperature using this expression, that is Cp is equal to A plus Bt plus Ct square plus dt cube, right? So here we have restricted it till parameter with 1 power, so that is Cp over R is equal to 1.7765 plus 33.037 into 10 to the power minus 3 into T. These constants are for isobutane vapors. If you change this system and you include any other gas, these constants will be different. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, इससे हम Cp कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी टेम्परेचर्स. इंथाल्पी और एंट्रोपी की रेफरेंस कंडीशंस के ऊपर वैल्यू स्ट्रेट अवे दे दी गई हैं. वेपर प्रेशर की वैल्यू गिवन है और 6.1 टेबल के अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज गिवन है अगेंस्ट एनी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस व्हिच आर गिवन इन दिस टेबल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली इंथाल्पी और एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेजिडुअल प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए. तो कैलकुलेशंस ऑफ HR एंड SR at 360 Kelvin and 15.41 bar by application of equation 6.46 and 6.48 requires evaluation of two integrals. अगर ये रेजिडुअल प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशंस आप देखें जो हमने लास्ट लेक्चर्स में ड्राइव किए थे इंथाल्पी के और एंट्रोपी के, which are given the names as equation 6.46 and equation 6.48. बैक पे जाके आप देखिएगा ये दो इक्वेशंस 6.46 एंड 6.48. मैं क्विकली आपको बैक पे जाके दिखा रहा हूँ. ये दो इक्वेशंस 6.46 which is the equation for HR which is the residual property of enthalpy divided by RT, उसका ये वाला एक्सप्रेशन है. और 6.49 जो कि गिब्स एनर्जी की रेजिडुअल प्रॉपर्टी अगर हमने निकालनी हो तो उसका ये वाला एक्सप्रेशन है. तो इन एक्सप्रेशंस में आप देखें ये इंटेग्रल ये डिफरेंशियल्स अपीयर हो रहे हैं. इंटेग्रल के अंदर जो डिफरेंशियल्स हैं यहाँ पे पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी है और यहाँ पे z माइनस 1 पैरामीटर है इनटू dp ओवर p. तो यही वो आपको बता रहा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है 6.46 उसमें पार्शियल z ओवर पार्शियल t था इंटेग्रल के अंदर, और जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है इसमें z माइनस 1 dp ओवर p
ये उस एक्सप्रेशन में था। ठीक है, तो हमने अगर ये रेजिडुअल प्रॉपर्टीज निकालनी है तो इट मीन्स कि हमें सबसे पहले पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज गिवन है अगेंस्ट डिफरेंट टेम्परेचर्स। हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट प्लॉट्स बना सकते हैं फॉर कांस्टेंट प्रेशर्स। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा मैं बैक पे जा रहा हूँ कि मेरे पास ये टेबल है, मैंने सबसे पहले ये वाला प्रेशर फिक्स किया 0.10 बार। अब मेरे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर ये कंप्रेसिबिलिटी की डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, फॉर दिस फिक्स वैल्यू ऑफ प्रेशर विच इज 0.10 बार, I have the 5 values of compressibility factor against these 5 different temperatures. तो मेरे पास एक जो प्लॉट है वो फाइनल हो जाएगा। फिर दूसरे प्रेशर के ऊपर दोबारा मेरे पास 5 वैल्यूज हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स की अगेंस्ट दीज टेम्परेचर्स, तो मेरे पास दूसरा प्लॉट आ जाएगा। फिर तीसरे प्रेशर के ऊपर अगेंस्ट मेरे पास इस तरह से हैं, तो डिफरेंट तरह के प्लॉट्स आएंगे और हर प्लॉट जो आएगा उसमें कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आप पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी निकाल सकते हैं थ्रू द स्लोप ऑफ दैट प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें मेंशन है और मैं ये रीड कर रहा हूँ थोड़ी। ग्राफिकल इंटीग्रेशन रिक्वायर्स सिंपल प्लॉट्स ऑफ पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, ये पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर divided by this P and Z minus 1 divided by P versus P, because we have here we are calculating the residual properties against the change in pressures. तो इसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ Z minus 1 over P are found from the compressibility factor data at 360 Kelvin। हमने अगर प्रेशर का चेंज देखना है और टेम्परेचर हमें पता है कि हमारा टेम्परेचर 360 केल्विन है, तो हम 360 केल्विन के ये 360 केल्विन का ये कॉलम है, इस 360 केल्विन टेम्परेचर के नीचे जो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर के अगेंस्ट ये वैल्यूज हैं। तो हम ये इसका प्लॉट बना के और वहां से प्रेशर का चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स। सिमिलरली given by the slope of plot of Z versus T at constant pressure, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, for this purpose separate plots are made of Z versus T for each constant pressure at which the compressibility factor data are given and a slope is determined at 360 Kelvin for each curve, for example by construction of a tangent line। आपको पता है कि किसी भी कर्व की अगर आपने स्लोप निकालनी है तो आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट लाइन के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी वैल्यू और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी चेंज हो रही है वैल्यू उसकी वैल्यूज लेके आप वो स्लोप से ये डिफरेंशियल निकाल सकते हैं विच इज़ पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि ये पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमें निकालने के लिए हमें क्या है, हमारे पास जी की वैल्यूज हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर्स। तो हम हर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जी का प्लॉट बना जी वर्सेस टी का प्लॉट हमारे पास आ जाएगा और हर उस प्लॉट पे जो टेम्परेचर 360 केल्विन होगा उस 360 केल्विन के लिहाज से हम उसकी स्लोप निकालेंगे और स्लोप निकाल के हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो जब ये वैल्यूज आ जाएंगे और इसी तरह Z माइनस 1 ओवर P की वैल्यूज भी कि प्रेशर की वेरिएशन के साथ साथ ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। तो जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो ये यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कर दी है। सो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेंट्स रिक्वायर्ड इन इक्वेशन 6.3 वैल्यूज इन पैरेंथेसिस और बाय एक्सट्रापोलेशन। तो जो पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय पी इंटू 10⁴ ये वैल्यूज जो हैं ये यहाँ पे मेंशन है अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर्स। और ये जो दूसरा है 1 माइनस जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी इंटू 10⁻², ये वैल्यूज इस वाले कॉलम में मेंशन। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये यूज होंगी इस वाले एक्सप्रेशन में क्योंकि यहाँ पे पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, और जो ये वाली वैल्यूज हैं ये इस वाले एक्सप्रेशन में यूज होंगी क्योंकि यहाँ पे जी माइनस 1 ओवर पी था, तो ये जी माइनस 1 ओवर पी। ठीक है,
ये माइनस साइन किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो ये पी इंटेग्रल से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे फिर ये माइनस का साइन आता है, और रिमेनिंग एक्सप्रेशन में ये पी स्केयर जो होगा ये इस डी पी की वजह से जो भी ऊपर पी होगा उससे कैंसिल आउट होकर सिंगल पी बचेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया है सिंपली, और जब हमने सॉल्व किया तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन बना। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ द टू इंटेग्रल्स आर, एक ये वाला एक्सप्रेशन था जिसमें ये इंटेग्रल था, उसमें जब हमने सारी वैल्यूज प्लेस की तो ये वाली वैल्यू बन गई हमें इस इंटेग्रल की। और जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन था z-1 dp ओवर p का, उसमें जब हमने इंटेग्रल की वैल्यू प्लेस की एट 360 केल्विन, तो ये वाली वैल्यू उसमें अपीयर होगी। ठीक है, उसके बाद हम स्टेट अवे उन एक्सप्रेशंस पे जा सकते हैं बाय इक्वेशन 6.46 एंड 6.48, जो कि अभी मैंने आपको दिखाए भी थे। 6.46 में रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ द एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और 6.48 में रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ द एंट्रोपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन एक्सप्रेशंस में ये वैल्यूज आप जब प्लेस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो दिस माइनस 0.9493 value is for the residual property of the enthalpy divided by RT, and this minus 0.6897 value is for the residual property of entropy divided by R. R की वैल्यू अगर आप फिक्स कर दें, जैसे हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए R की वैल्यू 8.314 जॉल पर मोल इंटू केल्विन, इन यूनिट्स में अगर आप बात करें तो 8.314। ठीक है, अगर आप बार्स में और वॉल्यूम को इंक्लूड करते हुए लिखना चाह रहे हैं तो वो 0.0821 डेसीमीटर क्यूब इंटू बार ओवर केल्विन, इस तरह से कुछ वैल्यूज हैं। उसके यूनिट्स अभी जहन में नहीं है, लेकिन आप उसको इजीली सर्च कर सकते हैं नेट पे। तो यहाँ पे चूंकि हम जॉल मोल केल्विन में काम कर रहे हैं, तो अगर आर की वैल्यू ये हम फिक्स कर देते हैं, तो इस आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, और टेम्परेचर जिस भी टेम्परेचर पे, जैसे हम 360 केल्विन पे करना चाह रहे हैं, तो ये रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ एंथैल्पी, ये जो हमारे पास वैल्यू थी -0.9493, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ और फिर टी के साथ। तो ये आर और ये टी जो हमारा टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमने इवेल्युएट करनी है प्रॉपर्टीज, तो ये आर टी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ एंथैल्पी आ गई। और ये दूसरे वाले इस एक्सप्रेशन में सिंपली आर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस वैल्यू को विच इज -0.6897, इसको सिंपली आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ द एंट्रोपी आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जी, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब जब ये आपके पास रेजिडुअल प्रॉपर्टीज आ गई एट द गिवन टेम्परेचर कंडीशंस, तो उसके बाद एक्चुअल रियल गैस के लिए आप उसकी इंथैल्पी और एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द एक्सप्रेशंस व्हिच वी सी इन दिस स्लाइड्स हियर। हमारे पास ये इंथैल्पी की रेजिडुअल प्रॉपर्टी आ गई और एंट्रोपी की रेजिडुअल प्रॉपर्टी आ गई। फिर जिस भी टेम्परेचर के ऊपर हमें कह रहे हैं, रेफरेंस टेम्परेचर हमें पता है कि 300 केल्विन है, और फाइनल टेम्परेचर हमें पता है कि 360 केल्विन है। सीपी की वैल्यू इजीली आप इवेल्युएट कर सकते हैं, सीपी डीटी का एक्सप्रेशन गिवन था वहां से। ये रेफरेंस कंडीशन के ऊपर एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, यहाँ पे ये देखें एंथैल्पी की रेफरेंस कंडीशन के ऊपर गिवन थी। सीपी डीटी हम इस फार्मूले के थ्रू इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। हमें पता है हमारा टेम्परेचर 360 केल्विन है, तो यहाँ से हम सीपी की वैल्यू इजीली सीपी डीटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एच आर हम निकाल चुके हैं, एच नॉट आई जी ये हमें गिवन है, और ये इसका हमें एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन के थ्रू 300 से 360 केल्विन का जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसके थ्रू हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो जब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई तो फिर हम यहाँ से रियल गैस की एंथैल्पी इजीली निकाल सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी जी सर, जो फाइनल इंट्रोपी और जो एंथैल्पी की जगह ये फार्मूलाज हैं सर, ये पेपर में गिवन होंगे या फिर याद रखने पड़ेंगे? ये आपको पेपर में मैं दे दूंगा। ठीक है, इसमें वैसे मतलब कुछ जो मुश्किल नहीं इंटरनल। है, लेकिन फिर भी आई विल प्रोवाइड दीज एक्सप्रेशंस। ओके सर। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे डेरिवेशंस की बात आती है, तो डेरिवेशंस में इनिशियल
एक्सप्रेशन जहाँ से हमने स्टार्ट करना है और जो भी फाइनल एक्सप्रेशन आपने बनाना है वो 2 एक्सप्रेशंस आपको गिवन होंगे, लेकिन उसके बीच की डेरिवेशन आपको बाज़ दफ़ा अगर पेपर में आती है तो बीच की डेरिवेशंस भी इन्वॉल्व हैं इस थर्मो में जी डेरिवेशन भी पेपर में आ सकती हैं आ सकती है, क्योंकि ये थर्मो 2 का सब्जेक्ट इस तरह का है। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है मैं डेरिवेशन ना दूँ, लेकिन थर्मो 2 का सब्जेक्ट इस तरह का है और इसमें मिड से पहले वाला जो मेरा पोर्शन है जो मैंने कवर करना है, इसमें ये ज़्यादातर ये इस तरह की चीज़ें ही हैं। ठीक है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल पैरामीटर्स सामने उसके एक्सप्रेस करने के लिए उसकी डेरिवेशंस इन्वॉल्व है। आपने देखा है शुरू से अब तक हम ये एक्सप्रेशंस ही स्टडी करते जा रहे हैं, उसको डिफरेंट उसकी Yes. फॉर्म्स डेवलप करते जा रहे हैं और हम फिर डिफरेंट सिस्टम्स के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंथैल्पी की रेजिडुअल प्रॉपर्टी हम निकाल चुके थे, ये रेफरेंस वैल्यू गिवन है हमें प्रॉब्लम में, और CP/dT हम इजीली 300 केल्विन से 360 केल्विन तक जो उसका चेंज है वो इजीली निकाल सकते हैं थ्रू दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ से एंथैल्पी हम निकाल लेंगे एक्चुअल रियल गैस के लिए एट द एक्चुअल टेम्परेचर कंडीशंस। इसी तरह जो एंट्रोपी है ये रेफरेंस कंडीशन के ऊपर गिवन है, रेजिडुअल एंट्रोपी हम निकाल चुके हैं और बाकी ये CP/dT वाला जो वैल्यूज़ है ये हम अगेन इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए वो वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। बाकी आगे R है एंड ln/P/P नोड। ठीक है, तो ये P नोड रेफरेंस प्रेशर है और जो P है वो गिवन प्रेशर है जिस गिवन प्रेशर के ऊपर आपने निकालना है। जैसे यहाँ पे हमारा गिवन प्रेशर क्या था, जिस गिवन प्रेशर के ऊपर हमने निकालना है 360 केल्विन, और फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर के बारे में कुछ नहीं बताया तो प्रेशर फिर आप वो 1 बार ही रखेंगे, तो फिर वो इस एक्सप्रेशन में ln/P/P नोड ये दोनों सेम प्रेशर्स होंगे। अगर वो प्रेशर में चेंजेस आ रही होंगी तो फिर आप यहाँ पे प्रेशर की चेंज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं उन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करके यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप बुक में भी देखें तो ICPH या ICPS की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ होगा, लेकिन मैंने सिंपल आपको बता दिया कि सिंपल ये वाले एक्सप्रेशन ही यूज़ हो रहे हैं। इन एक्सप्रेशंस में ही 2 टर्म्स को इंक्लूड करके ICPH का नाम दिया गया, या इन 2 एक्सप्रेशन को इंक्लूड करके जो दूसरे अल्फ़ाबेट्स हैं उनका नाम दिया गया। तो हम एज सच इन एक्सप्रेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं और इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके इजीली हम एंथैल्पी की और एंट्रोपी की वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी की है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेजिडुअल प्रॉपर्टीज बाय इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड अल्टरनेटिव मेथड। सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट आर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स क्या होती हैं? जी, एनी आइडिया? पहले नाम सुना हमने कभी इक्वेशन ऑफ स्टेट का? सर जी जी जी, आई एम हेयरिंग। प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पता चल सकता है। टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम जिसमें इतना इन्वॉल्व हो रहा है टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम जिसमें इन्वॉल्व हो उसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जो कि स्टेट वेरिएबल्स को रिलेट करे। एग्जैक्टली, दैट इज तो द राइट रिलेट्स हो रहे हैं एक्सप्रेशन। मतलब प्रेशर कि टेम्परेचर इक्वेशन ऑफ स्टेट वो इक्वेशंस होती हैं जो कि एक स्टेट वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होती हैं। 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं स्टेट वेरिएबल्स और एक होते हैं पाथ वेरिएबल्स। ये हमने थर्मो 1 में पढ़ा होगा। जो पाथ वेरिएबल्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जो पहुंच रहे हैं वो कौन सा पाथ फॉलो करते हुए पहुंच रहे हैं। अगर आप पाथ चेंज करते जाएं तो वो पाथ वेरिएबल्स चेंज होते जाएंगे, और जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उनका पाथ से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिंपली गिवन कंडीशंस के ऊपर उनकी वैल्यूज डिसाइड हो रही होती हैं कि जो भी अब गिवन स्टेट है इस गिवन स्टेट में टेम्परेचर प्रेशर की क्या कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के लिहाज से स्टेट वेरिएबल की ये वैल्यू फिक्स है, तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट वो इक्वेशंस होती हैं विच आर डिपेंडिंग ऑन द स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है,
So the calculation of the residual properties for gases and vapors through use of the virial equations and cubic equation of states. अब ये equation of states की different types हैं. ये भी आप next slide में देखेंगे कि इसमें different तरह की types होती हैं equation of states की, जिसमें virial coefficients involve होते हैं. Virial coefficients क्या होते हैं? ये भी थर्मो 1 में शायद आपने पढ़ा हो. Virial का लफ्ज थर्मो 1 में पढ़ा था हमने या नहीं? जी जी सर। क्या होते हैं वेरियल कोफिशिएंट्स या वेरियल इक्वेशंस क्या होती हैं? जी नो आइडिया. अगर पता है तो बता दें, नहीं पता तो स्ट्रेट अवे बता दें. सॉरी सर, नो आइडिया. नो रिस्पॉन्स. सर नहीं किया। नो आइडिया। आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है. सॉरी, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली. सो ये वेरियल कोफिशिएंट्स जो होते हैं, ये बेसिकली जो रियल गैसेस होती हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स आपस में इंट्रैक्शन हो रही होती है, उस इंट्रैक्शन की वजह से जो भी लॉसेस हो रहे हैं ये इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं. तो ये जो आप कैपिटल बी देख रहे हैं, दिस इज known as second virial coefficient which is the interaction of the two molecules. इसी तरह B के बाद C आता है which is the interaction of the three molecules simultaneously. तो उनकी इंट्रैक्शन की वजह से जो भी लॉसेस होने हैं वो इन विरियल कोफिशिएंट्स के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं. क्योंकि रियल केसेस में जो नॉन आइडियलिटी आ रही होती है वो इसी वजह से आ रही होती है कि मॉलिक्यूल्स दे आर क्लोज टू close with each other and they keep on interacting with each other. वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे और उनकी कोलिजन इंटरेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ लॉस हो रहे होंगे. दैट्स व्हाई हम उसको रियल गैस कह रहे होते हैं. तो ये कैपिटल बी या कैपिटल सी, कैपिटल बी इज द सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, कैपिटल सी इज द थर्ड वेरियल कोफिशिएंट. तो इस तरह से ये डिफरेंट वेरियल कोफिशिएंट्स को यूज करते हुए हम फिर उसमें नॉन आइडियलिटी कितनी आ रही है वो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. और ये वेरियल इक्वेशंस के लिए चैप्टर नंबर 3 में अगर आप जाएं तो वहाँ पे इसकी लिटिल बिट डिस्कशन है और वहाँ पे आप ये एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z-1 that can be written as BP over RT where this capital B is the second virial coefficient. जी any question? सर ये वीरियल कोएफिशिएंट वाला आप बता दें, मेरी तरफ आवाज नहीं आई. अच्छा, मैंने ये बता रहा था कि वेरियल कोफिशिएंट्स बताते हैं हमें कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स के आपस में इंट्रैक्शन हो रही है. तो इसमें डिफरेंट तरह के वेरियल कोफिशिएंट्स होते हैं. हम कहते हैं सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, थर्ड वेरियल कोफिशिएंट. जो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट है इट्स एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल बी. और ये कैपिटल बी जो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट है ये बताता है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं. इसी तरह थर्ड वेरियल कोफिशिएंट होता है विच इज कैपिटल सी. वो बताता है कि तीन मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. और जब आपस में वो इंटरेक्ट या आपस में कोलाइड कर रहे होंगे तो उसकी वजह से लॉसेस हो रहे होंगे. और इन वेरिएबल्स के थ्रू बेसिकली हम वो वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर रहे होते, वो जो भी चेंजेस हैं, जो वेरिएशंस हो रही हैं उसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे. तो ये वाला एक्सप्रेशन 3.38 इक्वेशन है इसी बुक में चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें Z-1 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज सेकंड वेरियल कोफिशिएंट विच इज कैपिटल बी P over RT. ठीक है. अब ये Z-1 चूंकि BP over RT की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये जो GR over RT का जो एक्सप्रेशन था जो हमने प्रीवियसली देखा था जिसमें Z-1 DP over P आ रहा होता है, इसमें अगर मैं Z-1 की जगह ये वाला एक्सप्रेशन रिप्लेस करूं और ये प्रेशर की इंटीग्रेशन करूं तो फाइनल GR over RT जो है वो सिंपली बन जाएगा BP over RT. ठीक है. दोबारा से ये Z-1 की जगह मैंने ये BP over RT रिप्लेस कर दिया Z-1 की जगह. तो ऊपर ये जो प्रेशर है ये इस प्रेशर से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सिंपली हमारे पास क्या बनेगा B over RT इंटू DP. और जब आप इंटेग्रल को अप्लाई करेंगे तो ये BP over RT हो जाएगा. ये लिमिट्स
आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो P माइनस 0, सो ये BP ओवर RT सिंपली फाइनली एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो गिब्स एनर्जी के जो रेजिडुअल प्रॉपर्टी है उसके लिए सिंपली आप ये वीरियल कोफिशिएंट्स के फॉर्म में BP ओवर RT का एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द वीरियल कोफिशिएंट, सेकंड वीरियल कोफिशिएंट इज गिवन टू यू एंड यू आर आस्क्ड to find the residual property for the Gibbs energy at the given condition of temperature, आप टेम्परेचर और वो वेरियल कोफिशिएंट की वैल्यू उसमें प्लेस करें एंड इजीली थ्रू दिस एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट दिस रेजिडुअल प्रॉपर्टी। तो यहाँ इस z-1 चूंकि एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरियल कोफिशिएंट थ्रू दिस एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि दिस z इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रेशर और टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे z की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो चूंकि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो इस लिहाज से हम ये जो इक्वेशन 6.46 और 6.48 है, जैसे हमने ये डेवलप की थी कि ये फॉर चेंजिंग टेम्परेचर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस एक्सप्रेशन इज फॉर चेंजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर चेंजिंग प्रेशर्स। जिस तरह से हमने ये डेवलप की थी, हम z के लिए भी इस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं। वो मैं कर नहीं रहा, आप बुक में देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है ये इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, और चूँकि उसकी एप्लीकेशन भी इतनी कॉमन नहीं है तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। सिंपली मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह ये एंथैल्पी और एंट्रोपी के लिए हमने कहा था कि ये प्रेशर और टेम्परेचर के चूँकि फंक्शंस हैं, तो इसको हम इन एक्सप्रेशंस में हम ड्राइव करके डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह चूंकि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इसको भी हम इस बेस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करके कुछ इस तरह से मिलते जुलते एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट इज अ रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स। मोर स्पेसिफिकली, एन इक्वेशन ऑफ स्टेट इज अ थर्मोडायनामिक इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ मैटर अंडर अ गिवन सेट ऑफ फिजिकल कंडीशंस। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो स्टेट वेरिएबल्स की फॉर्म में होती हैं, और वो स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि गिवन कंडीशंस के ऊपर जो भी सिस्टम है उन गिवन कंडीशंस के ऊपर उन स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज फिक्स होती हैं। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यील्डिंग पीवीटी रिलेशंस, और ये नॉर्मली पीवीटी की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जब एक दफ़ा फिक्स हो गए किसी भी स्टेट के ऊपर, तो उन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर आप उनको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। Equation of state are useful in describing the properties of fluids, mixture of fluids and solids. ठीक है, तो ये फ्लूइड्स के लिए, मिक्सचर्स अगर हैं उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को, और अगर सॉलिड्स हैं तो सॉलिड्स के केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट्स व्हिच आर लिस्टेड हियर। The first one is the major equation of state, which are simply classical ideal laws. The second one is cubic equation of states, and there are sub-classifications for this cubic equation of states. Then there are non-cubic equation of state and the subtype, and then last one is the virial equation of state. So here is the list of different equation of states, and this is your second assignment, that you have to briefly describe these equations theoretically and mathematically. क्या आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल ये पहली इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है और उसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है। सिमिलरली ये दूसरी टाइप जो है जिसके अंदर ये सब टाइप्स हैं, आपने हर टाइप का बताना है कि टाइप का बेसिस क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या है। तो उसके ब्रीफ सी डिस्कशन 4, 5, 6 लाइनों में और उसका फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये आपके सेकंड असाइनमेंट है, एंड द डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट इज नेक्स्ट वीक मंडे। ठीक है, ये अगेन मैं प्लेस कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर, एंड यू विल हैव टू सबमिट दिस सेकंड असाइनमेंट टिल नेक्स्ट मंडे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो लास्ट में वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये लास्ट वाली जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत मेंशन की है कि इसका फाइनल एक्सप्रेशन इस तरह से होता है कुछ वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी सी डी, ये बी मैंने आपको बताया था सेकंड वीरियल कोफिशिएंट है, सी थर्ड वीरियल कोफिशिएंट है, डी फोर्थ वीरियल कोफिशिएंट है।
तो जितने ज़्यादा मालिक्यूल्स एक वक्त में आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर 2 मालिक्यूल सिर्फ इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक वक्त में 2 से ज़्यादा मालिक्यूल आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो हम अपनी इक्वेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं टिल दिस सेकंड विरियल कोफिशिएंट। अगर एक वक्त में 2 से ज़्यादा मालिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम थर्ड विरियल कोफिशिएंट तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर एक वक्त में 3 से ज़्यादा मालिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह हम इसको एक्सपेंड करते रहते हैं। और फिर ये जो विरियल कोफिशिएंट्स हैं इनको हम क्रिटिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये बी को हम -VC विच इज क्रिटिकल वॉल्यूम। इसी तरह ये जो थर्ड विरियल कोफिशिएंट है सी, इसको VC स्क्वायर ओवर 3। ये डिफरेंट ऑथर्स थे, उन्होंने डिफरेंट रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंटेशन करके इन विरियल कोफिशिएंट्स को इवेलुएट करने के एक्सप्रेशंस डेवलप किए। तो उन एक्सप्रेशंस के थ्रू आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन यू कैन कैलकुलेट द स्टेट वेरिएबल्स फॉर द फाइनल सिस्टम। जी कोई क्वेश्चन था आई थिंक किसी का? जी इज देयर एनी क्वेश्चन? अब यहाँ पे आप देखेंगे जो विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है इनकी जो बेसिस है ना, बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल जो नॉलेज है ना वो स्टैटिस्टिकल नॉलेज को यूज करते हुए इन विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को एक्सपैंड किया हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स में ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बेसिकली हम इनको एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे टेलर्ड सीरीज, इस तरह की सीरीज को यूज करते हुए हम इनको एक्सपैंड कर सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसमें ये डिफरेंट विरियल कोफिशिएंट्स के लिए हम इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए इवेलुएट कर सकते हैं जो भी चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे लिखा हुआ भी है कि इन दिस केस दिस कैपिटल B which is the second virial coefficient corresponds to interactions between pairs of molecule, मतलब 2 molecules आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। C to triplets के 3 molecules आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप थर्ड वेरियल कोफिशिएंट या फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट, जितना ज़्यादा आप इसको एक्सपैंड करके ज़्यादा वेरियल कोफिशिएंट्स को इंक्लूड करते हुए आप कैलकुलेट करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। जैसे हमने CP में भी देखा था CP इज इक्वल टू A + BT + CT स्क्वायर्स। तो जितने ज़्यादा हम एक्सपैंड करके कैलकुलेट करें उतना ज़्यादा बेहतर चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं CP में। और जितना उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टिल A + BT की, तब बाकी सारी टर्म्स को हम इग्नोर कर देते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत एरर्स होंगे। तो सेम हेयर इन दिस विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। इसी तरह ये जो यहाँ पे ये लिस्ट गिवन है, इस लिस्ट में आपने यहाँ पे देखा था ये क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स जो है, जिसमें जो सेकंड सब टाइप है विच इज रेडलिच-नोंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये जो सेकंड इक्वेशन थी ये यहाँ पे मेंशन है और इसकी इस तरह नीचे थोड़ी सी बेसिस देके थोड़ी सी डिस्कशन की है। तो इस तरह से आपने असाइनमेंट बनानी है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2 आपको मेंशन की है। तो ये जो रेडलिच-नोंग इक्वेशन ऑफ स्टेट है इसमें दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैन बी इवेलुएटेड बाय दिस बीटा कोफिशिएंट, और ये बीटा कोफिशिएंट एप्सिलॉन और सिग्मा इनके फर्दर एक्सप्रेशंस होते हैं, उन एक्सप्रेशंस के थ्रू आप इनको इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये नीचे थ्योरी लिखी हुई है दिस कि रेडलिच-नोंग इंट्रोड्यूस इन 1942 द इक्वेशन that is considerable improvement over other equation of state. It is still of interest primarily due to its relatively simple form. आप देखें कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हमारे पास ये वेरिएबल्स गिवन हो फॉर एग्जांपल, या इन वेरिएबल्स के एक्सप्रेशन हो इन टर्म्स ऑफ अदर मेजरेबल पैरामीटर्स, तो हम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं इसको। While superior to the van der Waals equation of state, it performs poorly with respect to the liquid phase and thus cannot be used for accurately calculating vapor liquid equilibrium. अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशन आ गई है कि ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये प्योरली लिक्विड फेज के लिए यूज होती है, लेकिन जहाँ पे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया आ जाता है वहाँ पे फिर इसमें एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी आप फिर C कैलकुलेट कर रहे होंगे वो प्रॉपरली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं उसकी कैलकुलेट हो रही होगी। तो ये इसकी लिमिटेशन है। However, it can be used in conjunction with separate liquid phase correlations for this purpose. ठीक है, डिफरेंट लिक्विड फेजेस अगर हों तो उनके कोरिलेशंस के साथ ये यूज हो सकती है इक्वेशन।
The Redlich-Long equation is adequate for calculation of gas phase properties when the ratio of the pressure to the critical pressure, which is basically reduced property, is less than about 1/2 of the ratio of the temperature to the critical temperatures. ये दूसरी लिमिटेशन है कि इस इक्वेशन को आप लिक्विड्स के अलावा प्योर गैस सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो क्रिटिकल प्रेशर है विच इज जो रिड्यूस प्रेशर है विच इज एक्चुअल प्रेशर डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल प्रेशर, वो रिड्यूस प्रेशर की वैल्यू लेस होनी चाहिए, लेस देन अबाउट 1/2 ऑफ द रेशियो ऑफ टेम्परेचर टू द क्रिटिकल टेम्परेचर विच इज द रिड्यूस टेम्परेचर। ये दूसरी इसकी लिमिटेशन है कि ये रिड्यूस प्रेशर की वैल्यू लेस देन 1/2 होनी चाहिए टू दिस रिड्यूस टेम्परेचर। तो ये P/PC शुड बी लेस देन 1/2 T/Tc। ये दूसरी लिमिटेशन है इसकी कि आप इसको गैस फेज सिस्टम के लिए तब यूज कर सकते हैं जब ये कंडीशन मीट हो रही हो, दैट द रिड्यूस प्रेशर शुड बी लेस देन 1/2 ऑफ दिस रिड्यूस टेम्परेचर। और आपको रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर का पता है कि रिड्यूस प्रेशर या रिड्यूस टेम्परेचर्स क्या होते हैं कि एक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी है डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल प्रॉपर्टी, जैसे एक्चुअल प्रेशर और डिवाइडेड बाय क्रिटिकल प्रेशर, वो रिड्यूस प्रेशर होगा। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो प्रॉपर्टी हम जिस प्रॉपर्टी पे हमारा सिस्टम है ये क्रिटिकल पॉइंट से कितना अवे है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करके ये असाइनमेंट नंबर 2 है, ये सबमिट करनी है टिल द कमिंग मंडे। उसके बाद आप ये वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमने चूंकि देखा था कि z-1 को हम BP/RT की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं z-1 को। तो यहाँ पे जो रेजिडुअल प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशन थे उसको अगर हम इस वेरियल कोफिशिएंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे हमने गिब्स एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा था, रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ गिब्स एनर्जी G/RT Z-1 dP/P। अब हमने z-1 की जगह BP/RT अगर हमने रिप्लेस करना है तो G/RT का फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। सिमिलरली H रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ एंथैल्पी, उसका एक्सप्रेशन हमने पीछे देखा था 6.46 इक्वेशन जो हमने डेवलप की थी, वो कुछ इस तरह से थी। इस इक्वेशन में अगर हमने Z को रिप्लेस करना हो इन टर्म्स ऑफ दिस सेकंड वेरियल कोफिशिएंट तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए कर सकते हैं। ऐसे ही है, तो हम क्या करेंगे, इस Z की जगह रिप्लेस कर देंगे ये वाला एक्सप्रेशन, दैट विल बी 1 + BP/RT। तो ये Z की जगह मैंने 1 + BP/RT जब रिप्लेस किया तो फाइनल ये इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। This 6.46 equation is in terms of compressibility factor, and if I want to replace this compressibility factor in terms of this second variable equation, second variable coefficient, तो मैं Z की जगह 1 + BP/RT रिप्लेस कर सकता हूँ, और जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेके इसको एक्सपेंड करूंगा तो फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। एंड सिमिलरली फॉर एंट्रोपी, एंट्रोपी के लिए आपने देखा था कि जो सिंपल एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरह से था। तो इस सिंपल एक्सप्रेशन में अगेन आप H रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ एंथैल्पी का एक्सप्रेशन आप बना चुके हैं इन टर्म्स ऑफ दिस सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, और गिब्स एनर्जी रेजिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ गिब्स एनर्जी इसका भी एक्सप्रेशन आप बना चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरियल कोफिशिएंट। तो ये दो एक्सप्रेशन अगर आप इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो ये एंट्रोपी का एक्सप्रेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस सेकंड वेरियल कोफिशिएंट। ठीक है, सिंपल है जो हमने पहले ये एक्सप्रेशंस डेवलप किए हुए। इन एक्सप्रेशंस में सिंपली हमने Z को रिप्लेस करना है विद दिस सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, तो उसके लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते जाएंगे, और इन लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरियल कोफिशिएंट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन 6.54, 6.55 एंड 6.56। इज इट ओके? Yes, sir. I think time is about to finish, but we can complete these 3 slides now. Similarly, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने डेंसिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो PV = ZRT हम लिख सकते हैं, आपको पता है रियल गैस के लिए।
और अगर हमने डेंसिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो ये P इज इक्वल टू जी रो आर टी, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या रो इज इक्वल टू P ओवर जेड आर टी, हम इस तरह से लिख सकते हैं। या आपने स्टैको 1 में भी देखा कि किस तरह से हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो उस डेंसिटी को अगर हमने इंक्लूड करना हो इन एक्सप्रेशंस में तो हम डेंसिटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और जब डेंसिटी को इंक्लूड करना हो तो z माइनस 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरियल कोफिशिएंट एज बीटा रो। और अगर आपने थर्ड वेरियल कोफिशिएंट्स को भी इंक्लूड करना है तो z माइनस 1 विल बी इक्वल टू बी रो प्लस सी रो स्क्वायर्स। ठीक है, ये इक्वेशन भी आप चैप्टर 3 में देख सकते हैं, विच इज 3.40 इक्वेशन, कि अगर z को इन टर्म्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड वेरियल कोफिशिएंट्स के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है एंड यू वांट टू इंक्लूड डेंसिटीज एज वेल, तो आप इस इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ये तीन इक्वेशन जो थी इसमें